السلام علیکم دوستو، آج ہم ویب 3.0 کے دلچسپ دنیا میں گہرائیوں تک جانے کی کوشش کریں گے، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہمارے نیو کنٹینٹ سے اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ اب چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ویب کے ویریئنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسا کہ ویب 1.0، ویب 2.0 اینڈ ویب 3.0۔ ویب 3.0 یا پھر ویب 3 ورلڈ وائڈ ویب کی تھرڈ جنریشن ہے۔ حالانکہ ابھی تک یہ تیاری کے دور میں ہے، لیکن یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں ایک طاقتور اور کھلے ویب کی تصویر ہے جو اس کو استعمال کرنے والوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ویب 2.0 وہ دوسری اور ابھی کرنٹ جنریشن ہے جو ویب 1 کی جگہ لے گئی ہے۔ ویب 2.0 انٹرنیٹ کا ورژن ہے جسے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ویب 3.0 کو تفصیل سے سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پہلے ویب 1.0 اینڈ ویب 2.0 کو سمجھیں، اس لیے میں نے آج کے ٹاپک کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم لوگ ویب 1.0 کو اور اس کی فیچرز کو اور اس کی ایگزامپلس کو دیکھیں گے، اور سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگ ویب 2.0 اور تھرڈ پارٹ میں ہم لوگ ویب 3.0 کے فیچرز اور اس کے ایگزامپل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ویب 1.0 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویب 1.0 جسے عام طور پر اسٹیٹک ویب، جسے ریڈ اونلی ویب بھی کہتے ہیں، ورلڈ وائڈ ویب کی پہلی جنریشن کہلاتی ہے۔ اب ہم 1.0 کے کچھ فیچرز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلے اسٹیٹک ویب پیجز، ایسے پیجز جو صرف HTML سے بنے ہوتے ہیں اسٹیٹک ویب پیجز کہلاتے ہیں، اور جو ڈائنامکلی ورک نہ کرتے ہوں انہیں اسٹیٹک ویب پیجز کہتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ فیچر ہے انفارمیشنل کنٹینٹ۔ ویب 1.0 ویب سائٹس عام طور پر معلومات کے خزانے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ یہ ٹیکسٹ، تصویریں اور کبھی کبھی بیسک فارمز دکھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ نمبر 3 پہ اس کا فیچر ہے نو یوزر جنریٹڈ کنٹینٹ۔ ویب 1.0 میں یوزرز کنٹینٹ کے پیسو کنزیومر تھے، ان کو عام طور پر آسانی سے اپنے کنٹینٹ کو ویب سائٹس پر شامل کرنے یا سوشل انٹریکشنز میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 4 پہ سلو کنیکشن سپیڈز۔ ویب 1.0 کے دور میں انٹرنیٹ کے کنیکشن سپیڈز سلو تھی۔ اب ہم 1.0 کے کچھ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ارلی سرچ انجنز، الٹا وسٹا اور یاہو جیسے سرچ انجنز یوزر کو ویب ڈائریکٹریز اور معلومات ڈھونڈنے میں مدد کرنے کے لیے بیسک سرچ فنکشنلٹیز پرووائڈ کرتے تھے۔ نمبر 2 پہ اس کا ایگزامپل ہے وہ ہے نیوز ویب سائٹس۔ نیوز آرگنائزیشنز جیسے CNN اور BBC کی ویب سائٹس عام طور پر ٹیکسٹ بیسڈ نیوز آرٹیکلز اور تصویر فراہم کرتی تھیں۔ نمبر 3 پہ کوآپریٹو ویب سائٹس۔ کوآپریٹو ویب سائٹس بھی ویب 1.0 کی ایگزامپل ہے۔ کئی بزنسز اور آرگنائزیشنز کے پاس بیسک ویب سائٹس ہوتی تھیں جو کہ ڈیجیٹل بروشرز کی طرح کام کرتی تھیں اور ان کے پروڈکٹس اور سروسز کے بارے میں معلومات فراہم کرتی تھیں۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ یونیورسٹیز اور اسکولز کورسز، فیکلٹی اور ایڈمیشنز پروسیجرز کے بارے میں اسٹیٹک معلومات کو شیئر کرنے کے لیے ویب کا استعمال کرتے تھے۔ نیکسٹ ایگزامپل اس کی وہ ہے پرسنل ہوم پیجز۔ انڈیویجولز اپنے پرسنل ویب پیجز بناتے تھے جو کہ مختصر معلومات کو شیئر کرنے میں استعمال ہوتے تھے اور اکثر اپنی ہابیز، انٹرسٹ اور کنٹیکٹ انفارمیشنز کو بھی شیئر کرتے تھے۔ ویب 1.0 نے ویب کے مزید انٹریکٹیو اور ڈائنامک ہونے کے لیے بنیادی انتظامات کی فاؤنڈیشن رکھی جو آنے والے دوروں میں ویب 2.0 اور ویب 3.0 جیسے سٹیجز میں یوزر انگیجمنٹ، سوشل انٹریکشنز اور ملٹی میڈیا کنٹینٹ کو انٹرنیٹ کی بنیادی حصوں میں شامل کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اب ہم ویب 2.0 کی طرف چلتے ہیں۔ ویب 2.0 ورلڈ وائڈ ویب کی ڈیولپمنٹ کا سیکنڈ فیز ہے اور اس میں زیادہ ڈائنامک اور انٹریکٹیو آن لائن ایکسپیرینس فوکس کیے گئے ہیں۔ اس نے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی سوچ اور ترقی کو بدل دیا ہے۔ اب ہم ویب 2.0 کے کچھ فیچرز کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ ڈائنامک کنٹینٹ۔ ویب 2.0 کی ویب سائٹس نے AJAX، اسنکرینس جاوا اسکرپٹ اینڈ XML جیسے ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے ڈائنامک رسپانسو ویب پیجز کریٹ کیے جو بنا پورے پیج کو دوبارہ ریلوڈ کیے اپڈیٹ ہوتے ہیں۔ اس سے ویب ایپلیکیشن ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن کی طرح فیل ہوتے ہیں۔ سیکنڈ فیچر اس کا یوزر جنریٹڈ کنٹینٹ۔ ویب 2.0 پلیٹ فارمز یوزرز کو ان کا کنٹینٹ جیسے ٹیکسٹ، تصویریں، ویڈیوز اور ریویوز کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے انکریج کرتے ہیں۔ اس یوزر جنریٹڈ کنٹینٹ نے آن لائن ایکسپیرینس کا انٹیگرل حصہ بنایا۔ نیکسٹ فیچر اس کا وہ ہے رچ ملٹی میڈیا۔
वेब 2.0 में मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जैसे वीडियोस, एनिमेशंस और इंटरेक्टिव ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एलिमेंट्स वेबसाइट्स को ज़्यादा इंगेजिंग और विजुअली अपीलिंग बनाते हैं। कोलैबोरेशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स और प्लेटफॉर्म ने यूजर्स को प्रोजेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और आइडियाज पर मिलकर काम करने की इजाज़त दी। इसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर है वो है सोशल नेटवर्किंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन वेब 2.0 में अहमियत हासिल की। ये यूजर्स को कनेक्ट करने, अपनी अपडेट्स को शेयर करने और दूसरों के साथ ग्लोबल स्केल पर कम्युनिकेट करने की इजाजत देती हैं। नेक्स्ट इसके फीचर है पर्सनलाइजेशन। वेबसाइट्स यूजर्स को डेटा और प्रेफरेंस को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं ताकि इंडिविजुअल यूजर्स के लिए कंटेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिकमेंड किए जा सकें। अब हम वेब 2.0 के कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वेब 2.0 के प्राइम एग्जांपल्स हैं। यूजर्स प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने अपडेट्स को शेयर कर सकते हैं और कन्वर्सेशन में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है यूट्यूब यूजर्स को वीडियोस अपलोड, शेयर और देखने की इजाजत देता है, जो वीडियो कंटेंट को कंज्यूमर्स और शेयर करने के तरीके को बदल दिया है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है विकिपीडिया एक कोलैबोरेटिव ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है जहां यूजर्स आर्टिकल्स को एडिट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूजर्स जनरेटेड कंटेंट का प्राइम एग्जांपल्स है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है ब्लॉग्स प्लेटफॉर्म जैसे वर्डप्रेस और ब्लॉगर ने इंडिविजुअल को अपने कंटेंट को आसानी से क्रिएट करने और पब्लिश करने की इजाजत दी, अपने ख्यालात, राय और माहिराना जानकारी को शेयर करने की परमिशन दी। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस प्लेटफॉर्म्स जैसे ईबे और एटसी बायर्स और सेलर्स को एक साथ लेकर ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को आसान बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल गूगल मैप्स ने इंटरेक्टिव मैप्स इंट्रोड्यूस किए जिनमें डायरेक्शंस, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट जैसे रिव्यूज और तस्वीरें शामिल हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज जैसे जीमेल, कन्वर्सेशंस, थ्रेडिंग और रियल टाइम अपडेट्स जैसे फीचर्स के साथ डायनामिक इंटरेक्टिव ईमेल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। अगली इसकी एग्जांपल है कोलैबोरेटिव टूल्स। गूगल डॉक्स और ड्रॉपबॉक्स ने यूजर्स को डॉक्यूमेंट्स पर कोलैबोरेशन और फाइल्स को रियल टाइम में शेयर करने की इजाजत दी। वेब 2.0 ने इंटरनेट को एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन सेंट्रिक स्पेस डायनामिक यूजर ड्राइवन इकोसिस्टम में तब्दील कर दिया, जिसने वेब 3.0 और आगे की तरक्कियों के लिए रास्ते तय किए। मुझे उम्मीद है कि आपको वेब 1.0 और वेब 2.0 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं वेब 3.0 की तरफ। वेब 3.0 इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन है जो आमतौर पर सिमेंटिक वेब के तौर पर जाना जाता है। इसमें वेब को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा इंटरेक्टिव और ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड बनाने का मकसद है। अब हम वेब 3.0 के कुछ की फीचर्स को समझते हैं। नंबर 1 पे सिमेंटिक वेब। इसमें वेब कंटेंट का मशीन रीडेबल मेटाडेटा को शामिल करना जो कंप्यूटर्स को डेटा की मानी समझने में मददगार है। इससे बेहतर सर्च रिजल्ट्स और ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस पैदा होते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन। वेब 3.0 सेंट्रल अथॉरिटीज और प्लेटफॉर्म्स पर एतमाद कम करने का मकसद रखती है। ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजीज डिसेंट्रल एप्लीकेशंस और सर्विसेज को मुस्तकिल बनाने में अहमियत रखती है, जिससे यूजर्स अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल रखेगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट फीचर है एआई और मशीन लर्निंग। एडवांस्ड एआई एल्गोरिथम्स यूजर्स डेटा को एनालाइज करके हाईली पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस फराहम करते हैं। ये आपके इंटरेक्शन से सीखते हैं और आपके प्रेफरेंस के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका यूजर कंट्रोल। वेब 3.0 में आप अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप किस से क्या शेयर करना चाहते हैं और कौन उसका इख्तियार रखता है, जो आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसके कुछ और फीचर्स भी इसमें मैं शामिल करूंगा, जैसे कि इनहैंस्ड सिक्योरिटी, इनोवेशंस, कंटेंट ऑनरशिप एंड मोनेटाइजेशन। अब हम वेब 3.0 के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 पे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसको हम डीफी भी बोलते हैं। डीफी प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके एक मुस्तकिल माली इकोसिस्टम बनाते हैं। यूजर्स ट्रेडिशनल बैंक्स पर मुनहसर किए बिना क्रिप्टो करेंसीज पर कर्ज ले सकते हैं, उधार दे सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है
NFT नॉन फंजिबल टोकन, वेब 3.0 डिजिटल आर्ट, कलेक्टिबल्स, म्यूजिक्स और मजीद के लिए NFTs की बुनियाद पर ट्रेड करने की इजाजत देती है और ऑनरशिप के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर स्टोर किए जाते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया। वेब 3.0 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाने में यूजर्स को उनके डेटा और कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल देने के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट है सीमेंटिंग सर्च इंजन्स। वेब 3.0 सर्च इंजन्स को बेहतर समझने और समझाने वाला यूजर्स इंटेंट और कंटेक्स्ट समझने के लिए बेहतर बनाने की तरफ रफ्तार कर सकता है ताकि ज्यादा मौसर और पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट्स दिए जा सकें। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी। ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस यूजर्स को उनके पर्सनल डेटा और डिजिटल आइडेंटिटीज पर ज्यादा कंट्रोल देने में मददगार हैं, जो उन्हें जरूरत के वक्त जरूरी मालूमात ही शेयर करने की इजाजत देते हैं। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। वेब 3.0 ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके शफाफ और ट्रेसेबल सप्लाई चेन्स बनाने के लिए किया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी और ओरिजिन की तस्दीक कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम डॉस भी बोलते हैं। डॉस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए चलाई जाती हैं और टोकन होल्डर्स की तरफ से गवर्न होती हैं। ये मुस्तकिल डिसीजन मेकिंग और रिसोर्सेज की मैनेजमेंट को मुकम्मल बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हेल्थ केयर डेटा शेयरिंग। पेशेंट्स अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स पर कंट्रोल रख सकते हैं और उन्हें जरूरत के वक्त हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ सिक्योर तरीके से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी वेब 3.0 गेमिंग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन गेम्स एसेट्स की असल मलकियत और वर्चुअल रिकॉर्ड्स बनाने में मददगार होती है, जहां प्लेयर गेम्स के दरमियान एसेट्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी लास्ट एग्जांपल डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज। वेब 3.0 मुस्तकिल क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशंस फराहम करते हैं, जहां यूजर अपने स्टोरेज स्पेस को रेंट पर दे सकते हैं ताकि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज नेटवर्क बनाया जा सके। अब आप इस स्क्रीनशॉट पर फोकस करें। आपकी आसानी के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट इसमें ऐड किया है जिसमें वेब 1, वेब 2 और वेब 3 को मैंने अलग अलग से लिखा हुआ है। पहले टाइम में जब हम वेब 1 यूज करते थे, जस्ट हम लोग जहां किसी वेबसाइट में हमने लॉगिन होना होता था तो हम लोग क्या करते थे, यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे और लॉगिन का बटन प्रेस करते थे। उसके बाद वेब 2 आया। वेब 2 ने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ साथ उसने डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन दे दिया, जैसे कि फेसबुक में लॉगिन, आप फेसबुक के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके साथ साथ आप गूगल के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन हो सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, और इसके साथ आप लिंक्डइन के जरिए भी आप साइन इन हो सकते हैं। इस तरीके से और भी इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं। लेकिन वेब 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, ना ही आपको फेसबुक, गूगल या फिर लिंक्डइन की जरूरत है। डायरेक्टली आपने कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करना है और आपने उस प्लेटफॉर्म के साथ आपने जुड़ जाना है। ये वेब 1, वेब 2 और वेब 3 की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है कि इस स्क्रीनशॉट ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। वेब 3.0 इंटरनेट का मुस्तकबिल है जो आपके ऑनलाइन एक्सपीरियंस को ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड बनने का वादा करता है। ये एक दिलचस्प तरक्की है जो डिजिटल दुनिया के साथ हमारे इंटरेक्शन को दोबारा शक्ल देने की सलाहियत रखता है। टेक्नोलॉजी के तजावीज़ात के साथ वेब 3.0 की तरक्की को देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और टेक्नोलॉजी के दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर वीडियोस में किसी खास टॉपिक पर तफसीलन से बात करें तो कमेंट्स में हमें बताएं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।